हमारी इस बात की कोशिश कि मैं कुछ सही कर सकूं, सही विश्वास करने से पहले, वो धर्म है। वो धर्म की आत्मा से उत्पन्न होता है। Amen? Amen. That's why it's very important to have a healthy belief system. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ विश्वास की प्रणाली हो हमारे अंदर। There are Christians who believe that God will put them in poverty to teach them. So what happens? Jesus told people, let it be done unto you as per, not as per, he didn't say, let it be done unto you according to what I want, but he said, let it be done unto you as per your faith. So whatever you're witnessing right now is happening to you according to your faith. कई लोग इस प्रकार से मानते हैं कि यीशु हमें गरीबी में इसलिए रखता है ताकि वो हमारे जीवन में कुछ सबक सिखा सके, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हें अपने खुद के विश्वास के अनुकूल मिलेगा। Our entire behavior is motivated by a belief system. हमारा जो व्यवहार है वो भी प्रेरित होता है हमारी विश्वास की प्रणाली के द्वारा। Amen? And that's what I'm telling you. If you can pay attention there and align your believing according to the Word of God, your life will be filled with fruits. अगर हम अपने जीवन में सच में फल देखना चाहते हैं, अच्छे फल, तो हम अपने विश्वास की प्रणाली वचन के ऊपर आधारित कर दें। And today I'm going to teach you how easy it is to believe right. It's easy. और मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि सही विश्वास करना सरल है। Amen. And when you will believe right, you will enter into rest in that area. और जिस किसी क्षेत्र में आप अपने विश्वास की प्रणाली को सही कर देंगे, आप उस क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर लेंगे। Amen? Okay, I'm going to take you to a scripture. In Hebrews chapter 4, I'll read from verses 1 to 3. It says, therefore, since a promise remains of entering his rest. इब्रानी 4 उसका 1 से 3 पहली आयत, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। Let us fear lest any of you seem to have come short of it, for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. तो ऐसा करने से वो भय खाएं, ऐसा उन्हें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उसे रहित जान पड़े। दूसरी आयत, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। Okay, wait. You can go to church 365 days a year. But what you are hearing, if you don't mix faith with it, you have just wasted those hours. आप यहाँ पर आते हैं, आपने वचन सुना, लेकिन अगर आपने उस सुनने में विश्वास नहीं मिलाया, तो वो सारा समय आपने बर्बाद कर दिया। Christians miss the most important thing in their life, and that is hearing. And when the word is being preached, they are not hearing. And after the service, they say, Pastor, for the gospel was preached to them, but it did not profit them because they did not mix faith in what they heard. कई विश्वासी सुनने से चूक जाते हैं और सभा खत्म होने के बाद वो पास्टर से प्रार्थना कराने आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उसमें विश्वास को नहीं घोला। सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुना हुआ वचन आपको लाभ देने के लिए सुनाया जाता है। ये सत्संग नहीं है, यहाँ कथा नहीं बता रहे हैं। सुसमाचार इसीलिए बताया गया कि आपके जीवन में लाभ हो। The word that they heard did not profit them. The word that is being preached here and that is being taught here is for your profit. This is not a place for satsang or for any kind of other message, but the word of God is for your benefit, for your profit. For we who have believed do enter that rest. और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। Hear this.
How would you know you have believed? सुने, आप कैसे जानते हैं कि आपने विश्वास करा है? We who have believed have entered in rest. क्योंकि जिन्होंने विश्वास कर लिया है उन्होंने विश्राम में प्रवेश कर लिया है. I told you about my life. Do you know that right now, even in Christians, even in believers, 70% of worries are financial worries. और आपको मेरे जीवन के भी बारे में पता है, और आज भी विश्वासियों के जीवन में 70% जो घबराहट है या जो घबरा देने वाली बातें हैं वो आर्थिक अवस्था के कारण है. They're like, how will I get my kids? How will I pay their school fees? कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, उनकी स्कूल की फीस कैसे My करूंगा? husband is sick. How will I pay for his medical bills? और मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी इलाज के लिए बिल कैसे चुकाऊंगी? There is this anxiety. एक उत्तेजना अंदर बनी रहती है, एक घबराहट बनी रहती है. But when I believed right what the Bible says, I entered into rest in the area of finances. लेकिन जब मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सही विश्वास किया आर्थिक क्षेत्र में, मैं आर्थिक क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर गया. When I believed right about my health, what the Bible says, I entered into rest into the area of health. जब मैंने अपने स्वास्थ्य के बारे में सही विश्वास किया जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर गया. For we who believe, not we who did, we who believe. It's not your doing that makes you enter into the rest. It's your believing that makes you enter in the rest. यहाँ इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने जो किया उससे वो विश्राम में प्रवेश किए. नहीं, ऐसा नहीं लिखा है. यहाँ लिखा है कि जिन्होंने विश्वास किया है वो उस क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर गए. And hear this. God will never ever override your believing, your free will. If he could do that, then nobody had to believe in Jesus, right? Why does the Bible say believe in Jesus to be saved? If God can override your believing, everybody would be saved right now. तो परमेश्वर कभी आपकी सुइच्छा के परे काम नहीं करेगा, वो आपकी सुइच्छा से अलग काम नहीं करेगा. अगर ऐसा होता तो हमें यीशु की जरूरत ही क्या थी. लेकिन परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार ही का और हमारे विश्वास के अनुसार ही काम करता है. ओ पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हमारे काम जब बनते होते हैं ना, बस बनते बस लास्ट मोमेंट में बिगड़ जाते हैं. What happens? Now every time there is something good coming to their life, it will happen to them according to their believing. Oh Pastor ji, please pray for us. Our work was just about to be finished but it was stopped, and according to their belief system, उनके विश्वास के अनुसार ही उनके जीवन में वैसा होता रहेगा. So they say, what, we don't know what is happening. क्या reason है? प्रभु कहेगा reason तू है. You are the reason of your delays, not Satan. लोग आके कहते हैं कि क्या कारण है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है. परमेश्वर कहता है प्रभु दिखा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, और फिर आपको सपने में दिख रही है अपनी फोटो. ये है रीजन. शैतान नहीं है, आपकी विश्वास करने की प्रणाली जो है वो है कारण कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है. The Bible says out of the abundance of heart mouth speaks. So when you're not conscious of what you are saying, hear what you say. परमेश्वर का वचन ये प्रमाण देता है कि हमारी दिल की बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है. तो अगर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं. I'm not saying hear you when you are in church. Oh, God is good. All the time. वहाँ तो सब गाते हैं God is good. मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप कलीसिया आते हैं तब आप ध्यान से सुने कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब कहते हैं परमेश्वर भला है. I'm saying from Monday till Saturday. मैं What do you say? Because that reveals the belief system of your heart. मैं कलीसिया के बाहर की बात कर रहा हूँ, सोमवार से शुक्रवार की. तब आप ध्यान से सुने कि आप खुद से क्या बोल रहे हैं, आपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो बताता है कि आपके दिल की गहराई में क्या है. Think about this. Jesus is Almighty God on this earth. इस बात को सोचिए, यीशु जो है महाशक्तिशाली परमेश्वर है इस पृथ्वी पर. But he will ask people, do you believe that I can do this for you? लेकिन वो लोगों से उनसे पूछता है कि तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए. Yes, Lord. Okay. Let it be done unto you as per your faith.
वो कहते हैं हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप कर सकते हो, और यीशु कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार ऐसा हो। अब pastor we are on this earth, तो डिप्रेशन तो होगा ही ना, नॉर्मल है तो होगा ही फिर, because that's what you believe. What do you believe? We say, Pastor Ji, we are on this earth, therefore depression is bound to happen, but because you are believing so, it shall happen. तो Let me ask you, does the Bible say that believers will have depression? Is there any scripture कि हम तो अर्थ में तो होगा ही? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसी कोई आयत है जहां लिखा है कि तनाव आएगा ही आएगा? Or does the Bible say you will keep them in perfect peace because their minds are stayed on you? लेकिन क्या हमारी बाइबल ये नहीं कहती कि तू उन्हें सिद्ध शांति में रखेगा क्योंकि उनके मन तेरे ऊपर ठहरे हुए हैं?